Hello everyone, I'm Prachi from the channel Literature with Prachi. So we were doing BAGC 101, Block 1, Unit 4, which is Abhigyan Shakuntala, Character Analysis and Critical Perspectives. And this is the second class of Unit 4. Now it's time to talk about our topics. So we have two topics here in this unit, in which we have already covered the first one, which is Character Analysis in our previous class. So today we are going to discuss the critical analysis, in which we have gender, caste, and kingship as its subtopics. So if you haven't watched the first topic, then click the link below in the description box and get the first topic. So let's start our topic, critical analysis. So the play has been scrutinized under various critical lenses, और उनमें से एक है gender. So the play provides a very fertile spaces to examine the concept of gender in the Vedic society. So ये जो play है वो वैदिक सोसाइटी में जो जेंडर का कंसेप्ट था उसे एग्जामाइन करना हो तो उसके लिए काफी अच्छे खासे स्पेस दिया गया है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जेंडर के कॉन्सेप्ट को प्ले में. So Shakuntala is of semi-divine parentage, as her mother is an apsara or celestial being. Her ethereal or enchanting beauty is a testament to her apsara heritage. So शकुंतला जो है, जैसे हम लोगों को पता है, वो सेमी डिवाइन जो है, सेमी डिवाइन है वो, क्योंकि उसकी जो मदर है वो अप्सरा थी, इट मींस सेलेस्टियल बीइंग थी वो, और उसका जो शकुंतला का जो ब्यूटी है, एन्चेंटिंग ब्यूटी है, वो उसकी अप्सरा हेरिटेज होने का ये टेस्टामेंट है, मतलब उसका सबूत है, ठीक है, कह सकते हो. अप्सरा आर नोन फॉर देयर ब्यूटी बट आर also known for their disorderly femininity, in the sense that these women are not controlled by the structure of the patriarchal mortal world. So ये जो अप्सरा है ना, ये जो सेलेस्टियल बीइंग है ना, वो अपने ब्यूटी के लिए तो जानी जाती ही है, बट यहाँ पे वो जो है अपने डिसऑर्डरली फेमिनिटी के लिए भी जानी जाती है, इन द सेंस कि वो जो वुमेन्स होती है, इट मींस जो अप्सरा होती है, वो पैट्रियार्कल मोरटल वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि उससे कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है, मतलब वो उससे अबव होती है, ओके, क्योंकि वो जो है अपने डिसऑर्डरली फेमिनिटी के लिए जानी जाती है, ठीक है. These celestial beings were adept at music and dance, and the gods used them to disrupt the meditation of powerful ascetics, which was the case with the Apsara Menka, Shakuntala's mother, as she was sent by the god Indra to distract the sage Vishwamitra from his penance. So ये जो celestial being है, जो अप्सराएं होती है, वो जो अपने म्यूजिक और डांस होता है उसमें काफी अच्छी होती हैं, ठीक है, और जो गॉड जो है वो इन्हें जितने भी पावरफुल एस्थेटिक्स होते हैं उनके मेडिटेशन को डिस्टर्ब करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि जो शकुंतला की मदर है अप्सरा मेनका, उन्हें गॉड इंद्र ने भेजा था विश्वामित्र, सेज विश्वामित्र का जो पीनेंस था उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, उन जो तप कर रहे थे उसमें वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, और वो उसमें सक्सेसफुल भी हुई थी. In the play, when Shakuntala goes to Dushyant's court, he accuses her of trying to pass off another man's child as his when she tells him of her pregnancy. So play में क्या होता है, जब शकुंतला जो है वो दुष्यंत के कोर्ट में जाती है और उसे प्रेगनेंसी के बारे में उसके बताती है, then he accuses her, उसे accuse करता है that she is trying to pass off another man's child as his, okay. तो वो उसे एक्यूज करते हैं कि वो किसी और के चाइल्ड मतलब को दुष्यंत का चाइल्ड बता रही है, ठीक है. However, Kalidas does offer a redemptive understanding of Apsara's right after Dushyant rejects Shakuntala, abandoned by everyone. A distraught Shakuntala asks the earth to swallow her, and as she leaves the court, her mother transports her to her heavenly hermitage. So
अभी हम लोगों ने प्रीवियस जो हम लोगों ने लाइंस देखा उसमें क्या था कि दुष्यंत जो है शकुंतला को बोल रहा होता है कि उसने किसी और का मैन जो है चाइल्ड जो है किसी और का वो दुष्यंत का बता रही है ऐसा करके। तो ऐसा वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो वो से तो मतलब सबको पता है ना कि अप्सरा की डॉटर है शकुंतला। तो फिर वो इसी पे जो है एज्यूम कर रहा है शकुंतला का भी कैरेक्टर, शकुंतला के बारे में भी एज्यूम कर रहा है उसी तरह से कि शकुंतला भी वैसी ही होगी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो अप्सरा होती है वो इरिस्पॉन्सिबल होती है और वो केयरलेस होती है ना। बट यहाँ पे कालिदास जी ने जो है एक अप्सरा का एक रिडेम्पटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफर करा हमें यहाँ पे। कब? जब दुष्यंत जो है शकुंतला को रिजेक्ट कर देता है और जो शकुंतला है उसके जो एस्थेटिक स्कॉट्स आए थे साथ में वो उन्हें छोड़ के शकुंतला को छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ दुष्यंत भी रिफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पे जो है शकुंतला वो अर्थ को बोलती है, मतलब मदर अर्थ को बोलती है कि वो उसे अपने अंदर संभाले, स्वेलो कर ले, ठीक है। जैसा हम लोग ने सेम सीन जो है ऐसा ही रामायण में देखा था जब सीता जो है गॉडेस सीता ने जो है सेम यही किया था जिसमें मदर अर्थ ने उन्हें अपने अंदर समा लिया था, ठीक है, जब उनके चेस्टिटी पे क्वेश्चन आया था। तो ऐसा ही यहाँ शकुंतला भी करती है। उसके बाद ये करने के बाद जो है वो बाहर आती है, वो कोर्ट छोड़ देती है, कोर्ट से बाहर निकल के आ जाती है जहाँ उसकी मदर जो है उसे अपने साथ हवेली हर्मिटेज इट मीन्स सेज मारिका के हर्मिटेज में ले जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक्ट 7 में प्रजापति और अदिति के बारे में। तो वो कौन थे? प्रजापति ही सेज मारिका है और वो दोनों कौन है? अदिति और मारिका, वो दोनों लॉर्ड इंद्र के फादर और मदर है। ओके, so this event shows us the protective and caring side of Menka, who though Apsara feels a sense of responsibility for her daughter Shakuntala's plight. तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो शकुंतला की मदर है मेनका, उन्होंने क्या करा था कि शकुंतला को फॉरेस्ट में अकेला छोड़ दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे उनका जो है रिस्पॉन्सिबल होना देखा था। बट यहाँ पे जहाँ पे दुष्यंत ने शकुंतला को रिजेक्ट करा और वो एकदम अकेली थी, उस टाइम पे उनकी जो मदर मीन्स मेनका, जो मेनका है वो आकर उसे अपने साथ ले जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेनका का इट मीन्स जो अप्सरा है उनका प्रोटेक्टिव और केयरिंग साइड देखा, ठीक है, जो हम लोगों को ये सेंस दिखाता है, मतलब ये फील करा रहा है यहाँ पे ऐसा करके कि जो शकुंतला को अपने साथ ले जाना जो है अपनी डॉटर को मेनका का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है। Her mother even instructs her friend Mr. Casey to keep an eye on Shakuntala as well as on events unfolding in the mortal realm with Dushyant। तो हम लोगों ने एक और साइड देखा, मतलब एक और बार देखा था जो मेनका है, जो अप्सरा मेनका है, उनका ये प्रोटेक्टिव साइड। तो कब? जब जो मेनका है उन्होंने अपने फ्रेंड मिश्रा केशी को, जो उनकी फ्रेंड थी, वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करे थे कि शकुंतला पे नजर रखने के लिए कि उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर जब शकुंतला वापस आ जाती है तो दुष्यंत पे जो है वो क्या कर रहा है उसके इवेंट पे नजर रखने के लिए को बोलती है। However, this is not enough to overturn the stigma of promiscuity and assertive individuality associated with Apsaras, and so Kalidas recreates Shakuntala in the play as an obedient, virtuous woman who is steadfast in her love even after being abandoned. Thus, Kalidas creates an image of dutiful wife who, even in the face of injustice, does not abandon her responsibility. अभी जो हम लोगों ने देखा अप्सरा के बारे में, इनका रिस्पॉन्सिबल होने के बारे में, उनके प्रोटेक्टिव साइड को देखा हम लोगों ने, तो ये सब इनफ नहीं है उनके स्टिग्मा को ओवरटर्न करने के लिए, उनके जो इंडिविजुअलिटी है उसे चेंज करने के लिए जो अप्सरा से जुड़ा हुआ है कि वो इररिस्पॉन्सिबल है और मेनी मोर। सो यहाँ पे जो है कालिदास ने जो है शकुंतला को प्ले में रिक्रिएट किया, उसे एक मतलब वो अप्सरा की डॉटर है ना, तो उससे अप्सरा जैसा ही थिंग सब एक्सपेक्ट करेंगे। बट प्ले में उन्होंने क्या किया है, मतलब कालिदास ने क्या किया है, उन्होंने शकुंतला को एक ओबीडिएंट वर्चुअस वुमेन दिखाया है जो कि अपने लव के लिए जो है स्टीडफास्ट है,
इवन कि उसे अबेंडन कर दिया गया, उसे अकेला छोड़ दिया गया, फिर भी, ठीक है, अबेंडन करने के बाद भी जो कालिदास है उन्होंने इसलिए जो है शकुंतला को एक ब्यूटीफुल वाइफ का इमेज दिया है, और वो इनजस्टिस फेस करने के बाद भी, अबेंडन होने के बाद भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ती है, ठीक है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अबेंडन नहीं करती है. So the play also offers a look into the expected female behavior in the Vedic period through the repeated instructions on how to be an ideal wife. तो प्ले में जो है कुछ ऐसे, मतलब फीमेल का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके एक्सपेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड किया गया है. वैदिक पीरियड में जो है कैसे एक्सपेक्ट किया जाता था फीमेल का बिहेवियर. तो यहाँ पे कुछ रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस आए थे, जैसे कि एक्ट हम लोग ले सकते हैं एक्ट 4 में, जब शकुंतला जा रही होती है तो जो ऋषि कण्वा है वो उन्हें समझा रहे होते हैं कि आइडियल वाइफ कैसे होती है, कैसे होना चाहिए, कैसे बन सकती है, ऐसा करके. फिर बाद में जो मेट्रॉन है हार्मिटेज की, गौतमी, वो भी उन्हें सेम बात ही रिपीट करती है. तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे जो प्ले है उसने कैसे फीमेल के जो बिहेवियर, उसे कैसा वैदिक पीरियड में होना चाहिए ऐसा एक्सपेक्ट करते थे दूसरे कैरेक्टर्स. ठीक है, दूसरे कैरेक्टर्स कैसा एक्सपेक्ट करते थे फीमेल बिहेवियर को, कब, वैदिक पीरियड में. ठीक है, तो हम लोग इस प्ले के थ्रू ये जान सकते हैं. So let's see our next subtopic, which is caste. So caste played a huge role in the Vedic Hindu society, and it still does in today Indian society. The fourfold structure of caste regulates everything from marriage, occupation, education, food, and religious rituals, etc. So Vedic Hindu society में caste काफी crucial role play करता है. इवन हमारे इंडियन सोसाइटी में आज भी कास्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. तो फोर फोल्ड स्ट्रक्चर जो है कास्ट का, वो सब कुछ रेगुलेट करता है, जैसे मैरिज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, फूड एंड रिलीजियस रिचुअल्स एक्सेट्रा. ठीक है. In the playwright form Act 1, we see how caste determines the action of the characters. Before Dushyant begins to actively pursue Shakuntala, he wants to ascertain her caste or one. A Kshatriya king cannot marry a woman of a known caste, and as stated in the Manusmriti, a man can marry a woman who is of the same caste or one caste lower, known as Anu. So, प्ले में जो है हम लोग एक्ट 1 से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कास्ट जो है कैरेक्टर का एक्शन जो है डिटरमाइन करता है. जैसे कि दुष्यंत शकुंतला को मतलब उससे वो करने से पहले, उससे बात करने से पहले, शकुंतला से मिलने से पहले वो शकुंतला का कास्ट और वर्ण जानना चाहता है. ठीक है, जानने की कोशिश करता है, और वो उसे पता भी चलता है, उसके कंपेनियंस बताते हैं, जब शकुंतला के कंपेनियंस बता देते हैं. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक क्षत्रिय किंग जो है वो किसी भी अननोन कास्ट की वुमन को मैरी नहीं कर सकता है. जैसा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो मैन है वो केवल अपने सेम कास्ट की वुमन को या फिर एक कास्ट लोअर वुमन को मैरी कर सकता है. एक कास्ट लोअर होना को हम लोग अनुलोम मैरिज कहते हैं, अनुलोम कहते हैं. ठीक है, जब एक कास्ट लोअर में मैन की एक कास्ट लोअर वुमन से मैरिज होती है तो हम लोग उसे अनुलोम कहते हैं. ठीक है, ये सब हम लोगों को नेक्स्ट बुक में पढ़ना है, जो कि है आई थिंक जेंडर वाले, जेंडर सेंसिटाइजेशन वाले में, आई थिंक सो. BSOG 171 में भी है, इंडियन सोसाइटी करके है बुक, उसमें होगा. ठीक है, वेल हम लोगों तो कोर्स करना है ना. So, once Shakuntala's friend confirm her Kshatriya caste, Dushyant is relieved and proceeds to woo her. Dushyant's love for Shakuntala, whether genuine or a passing whim, cannot fall outside of the warned order, and hence knowing where
she stands in the ward system is important for him. तो शकुंतला की फ्रेंड जब कंफर्म कर देती है कि शकुंतला है वो कास्ट एंड जिसे क्षत्रिय कास्ट की है, तो दुष्यंत रिलीफ हो जाता है और वो अपना जो शकुंतला से बात करना जो है उसे कन्विंस करना मैरिज के लिए स्टार्ट करता है। सो दुष्यंत का जो लव है शकुंतला के लिए वो तब तक नहीं था जब तक उसके बारे में पता नहीं था, कि उसकी कास्ट के बारे में पता नहीं था। तो वो जो है किसी और भी जो उसके वर्ण से बाहर हो उससे शादी नहीं कर सकता था, ठीक है। सो शकुंतला के वर्ण के बारे में जानना काफी जरूरी है, ठीक है, और जरूरी था मिनट से। तो उसे ये जानना जरूरी था कि शकुंतला जो है वर्ण सिस्टम में कहाँ पे ये है, मतलब वो क्षत्रिय कास्ट की है या फिर नहीं, या वो सेम कास्ट की है या एक, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा अनुलोम में, तो कितना वर्ण सिस्टम में वो कहाँ पे है, कहाँ वो स्टैंड कर रही है, ठीक है। वो जानना दुष्यंत के लिए इम्पोर्टेंट था। In accordance of the caste system, sons are important as they ensure the continuation of the family's name caste line. So caste system के according क्या है कि सन जो है काफी important होता है और यही जो है फैमिली का नेम और कास्ट लाइन को कंटिन्यू करने में, आगे बढ़ाने को जो है सुनिश्चित करता है, इट मींस इंश्योर करता है। Alright, another incident that shows caste prejudice is the fisherman episode where he is treated with disdain and called a thief for having found the cursed ring. The guards abuse and beat him and threaten to hang him without any proof because of their own caste superiority over the fishermen. So, अभी तक हम लोगों ने देखा कि शकुंतला को मैरी करने के लिए दुष्यंत ने जो है दुष्यंत का शकुंतला का कास्ट जानना बहुत जरूरी था, ठीक है, वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने कास्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंस कहाँ देखा अभी तक में, शकुंतला के साथ देखा, ठीक है, जहाँ पे जो है दुष्यंत, किंग दुष्यंत जो है वो शकुंतला को मैरी करने के लिए उससे पहले वो शकुंतला का कास्ट जानते हैं, ठीक है, जानने का कोशिश करते हैं और जानते भी हैं जब उनकी कंपेनियन जो है बता देती है, जब वो इंश्योर कर देती है कि शकुंतला जो है क्षत्रिय कास्ट की है, तो दुष्यंत जो है शकुंतला को मैरी करने के लिए, मतलब उससे पूछने के लिए या कहो तो वो करने के लिए जो है प्रोसीड करते हैं, ठीक है। बट अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अब नेक्स्ट जो है दूसरा हम लोग देखने वाले कास्ट का जो भी इंपॉर्टेंस है, कास्ट प्रेजुडिस देखने वाले हम। तो हम लोग ये देखेंगे फिशरमैन वाले एपिसोड में, ठीक है, जहाँ पे उसे बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया जाता है और उसे थीफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है ये रिंग, कर्स्ड रिंग जो थी वो रॉयल रिंग थी ना, तो उसे मिला था, ठीक है, जो फिशरमैन था उसे वो कर्स्ड रिंग मिला था। तो जब गार्ड्स जो है उसे फिशरमैन के पास देखते हैं तो वो उसे एक्यूज करते हैं कि उसने जो ये रिंग है, रॉयल रिंग जो है, सिग्नेट रिंग जो है, उसने उसे चुराया, स्टील किया। तो गार्ड उसे अब्यूज करते हैं, बीट करते हैं, बहुत पीटते हैं, काफी डराते भी हैं और बिना किसी प्रूफ के उसे बोल देते हैं कि वो थीफ है, उसने चोरी करी है, उसने स्टील करा है वो सिग्नेट रिंग को, ठीक है, क्योंकि उनका कास्ट सुपीरियर था फिशरमैन से, इसलिए मतलब फिशरमैन के लोअर कास्ट होने की वजह से उन लोगों ने जो है ये खुद से ही सोच लिया, बिना किसी प्रूफ का खुद ही बता दिया कि उसने जो है रिंग चोरी की, ठीक है। They assume that he must have stolen the ring because of his lower caste position. Even after Dushant rewards the fisherman for having found the ring, the guards do not apologize for their cruel behavior but are instead irritated at the reward being given to him. तो यहाँ पे जो है वो खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं कि जो फिशरमैन है उसने ये रिंग चोरी की है, स्टील किया है, ठीक है, इसी ने स्टोलन किया होगा, इसी ने चुराया होगा, क्योंकि उसका जो पोजीशन था वो कास्ट का काफी लोअर था, ठीक है, लोअर कास्ट पोजीशन की वजह से उस पे ये एक्यूज किया जा रहा था उसे।
बल्कि उसे दुष्यंत ने रिवॉर्ड भी दिया था कि उसने ये जो रिंग है उसे उसे मिल गया, उसने ढूंढा, फिशरमैन को रिवॉर्ड दिया दुष्यंत ने। फिर भी जो है गार्ड को कोई अपोलोगाइज नहीं था उनके क्रूअल बिहेवियर पे जो उसने पहले फिशरमैन के साथ किया था। जो प्रीवियस टाइम पे जो क्रूअल बिहेवियर था गार्ड्स का, उसे लेके उन गार्ड्स को कोई अपोलोगाइज नहीं था। बट वो काफी इरिटेट हो रहे थे कि उससे रिवॉर्ड मिल गया उस फिशरमैन को। So it is only when the fisherman offers to share the reward by alcohol for them that they become friendly. This incident displays the hypocrisy of the caste system where differences can... हाँ मतलब यहाँ पे क्या है ना कि फिशरमैन से तब उनकी दोस्ती हुई जब जब फिशरमैन ने उन लोगों को अल्कोहल के लिए मतलब एज अ रिवॉर्ड जो है अपना शेयर करने के लिए बोलता है, अपना रिवॉर्ड शेयर करेगा तो फिर वो लोग फ्रेंड बनते हैं। वेल यहाँ पे ऐसा कास्ट सिस्टम का कोई ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ग्रीड लोग होते हैं उनका कोई कास्ट नहीं होता, ठीक है। तो अपनी ग्रीड की वजह से जो गार्ड्स है वो फिशरमैन के दोस्त बने रिवॉर्ड को शेयर करने के लिए, ठीक है। ओके, सो our third topic is kingship. So the play is not just a romance between a man and a woman, but of a king and a semi-divine woman. So प्ले जो है वो केवल मैन और वुमेन का जो है रोमांस नहीं दिखा रहा है, बट एक किंग और सेमी डिवाइन का जो है स्टोरी है उसके बारे में बता रहे हैं। So Dushyant is also described as a sage king having the virtue, wisdom as well as the power to rule over his kingdom. Therefore, it is Dushyant's duty to protect those in need, which is what gives him the opportunity to woo Shakuntala in the hermitage. He is also responsible for maintaining order in his kingdom, and Indra even calls upon him to help them defeat the demons or asurs and help restore cosmic order. So दुष्यंत जो है वो एज अ सेज किंग इस प्ले में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि काफी उसके पास वर्च्यू है, विजडम है और किंगडम पे उसके किंगडम पे रूल करने का पावर है। ऑफ कोर्स वो एक किंग है। सो इसलिए जो दुष्यंत का जो ड्यूटी है वो जो भी नीड में पीपल हो उसका प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो इसका जो ड्यूटी है दुष्यंत का, वो उसे एक अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पे, जहाँ पे हर्मिटेज में जो शकुंतला होती है वो उसे मैरिज के लिए कन्विंस करे, ठीक है। सो जो दुष्यंत है वो अपने जो किंगडम है उसमें पीस और ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इंद्र जो लॉर्ड इंद्र है वो कभी भी उन्हें कॉल करते हैं क्योंकि वो काफी ट्रियम्फेट किंग है ऑफ कोर्स, तो उन्हें कब बुलाते हैं जब भी उन्हें हेल्प की नीड होती है, जब भी डिमंस के अगेंस्ट फाइट हो रही होती है, तो वो डिमंस के अगेंस्ट मतलब जो दुष्यंत है किंग दुष्यंत वो डिमंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं और लॉर्ड मतलब गॉड के साइड से, और वो जो है कॉस्मिक ऑर्डर को रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं। The king's desire for a son is of paramount importance for the benefit of kingdom as well. Thus, when he rejects Shakuntala and the unborn son, he is doing so not just as a man but also as a king. He cannot accept any child as is without confirming the parentage. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कर्स की वजह से जो किंग की मेमोरी थी वो चली जाती है, तो उनकी मेमोरी चली गई है, तो फिर वहां पे वो जो शकुंतला को जो रिजेक्ट करते हैं वो उनका एक वो एज अ किंग सोच के रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, एज अ मैन ही नहीं बट एज अ किंग भी वो सोचते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो उनका जो ये डिसीजन होता है ये लॉजिकल होता है। तो कैसे? तो जो किंग का डिजायर है वो है सन के लिए, वो काफी मतलब वो एक पारामाउंट इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, किंगडम के लिए, मतलब किंगडम के बेनिफिट के लिए भी, ठीक है। तो जब जो शकुंतला को जो है और अनबॉर्न सन को जो है किंग दुष्यंत रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एज अ मैन ही ऐसा नहीं कर रहे होते हैं बट एज अ किंग ऐसा कर रहे होते हैं, राइट। सो वो किसी भी चाइल्ड को उनके सन एज अ सन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक किंग है तो उन्हें सब कुछ सोचना पड़ता है। तो वो एज अ किसी भी चाइल्ड को एज अ प्रिंस जो है अपने सन के तरह जो है
एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक उन्हें उनके दुष्यंत को या किंग को उस चाइल्ड के पेरेंटेज के बारे में कंफर्मेशन ना, ठीक है। So as a king, there are times when Dushyant forgets his duty, specifically before the consummation of desire for Shakuntala and after the revelation of the curse. So, as a king जो है बहुत टाइम पे जो है दुष्यंत ने अपनी ड्यूटी को फॉरगेट किया, बहुत टाइम भूला है, ठीक है, मतलब भूले हैं। स्पेसिफिकली जब वो शकुंतला के लिए जो उनका डिजायर था उस टाइम पे, उससे पहले शकुंतला से मैरिज करने से पहले, शकुंतला को मैरी करने से पहले वो अपनी ड्यूटी भूले थे। और दूसरा जो कर्स की वजह से, मतलब कि आफ्टर द रिवेलेशन ऑफ कर्स वो जो है अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। तो अपनी ड्यूटी कब भूलते हैं, तो ये हम लोगों ने पहले ही थोड़ा डिस्कस कर रखा है, तो ये तो समझ आना चाहिए। ओके, सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास विद दिस ब्लॉक। तो ये ब्लॉक भी आज खत्म हो गया। सो from the next class we will start block 2 named with Mahabharat by Vyas. Okay, so if you like this video, then give thumbs up, and the new viewers, kindly subscribe this channel and don't forget to click the bell icon, as well as if you have any queries, then you can ask me in comment box. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will be updated time to time with the notice of IGNOU. And for this, I'll give the link in the description box. Thanks for watching.